Good morning, children. Again, coming to our next session of history, I am going to again recap the chapter Rise of Christianity. All of you know that there are many religions in this world, but they all did not came into the same time. सारे religion एक ही time से नहीं शुरू हुए. They all came in different times, in different periods, and in different areas. In the similar way, we are going to just study about the Christianity. When and where it did come. It arose in medieval period. ये medieval period में start हुआ यूरोप में. It started in Europe. It came into being, I think, in when Jesus Christ was born. But what is the medieval period? First, we will tell you about that. What is medieval period? होता क्या है medieval period? Actually, history is divided into three categories: ancient, medieval, and modern. And on which basis do we divide this? Periods, we divide the period according to the changes. The changes are gradual in all the spheres like social, economic, political, religious. They are very gradual. But sometimes they just after coming slowly, a point comes when there is a constant change in all the spheres. In the same way, medieval period in Europe, it is considered from 6th century CE to 16th century CE. It saw many changes in all the social, economic, political, हर चीज में वहाँ पे इस बीच में, इस पीरियड के बीच में वहाँ पे changes हुए. Now, moving on to the next topic, that is birth of Christianity, how Christianity came into being. So first of all, I'll tell you about the background. आखिर क्या वहाँ पे बैकग्राउंड था, क्यों क्रिश्चियनिटी है? The reason is in Europe, many areas was ruled by the Romans. You know who were the Romans? I told you that in Roman civilization we have heard that they were the greatest empire at that time, and they were ruling many of the countries at that time. Similarly, the last BCE, that is before Christ era, they came into Palestine and they started ruling there. In the first century of BCE, that is before 1 year of Jesus Christ's birth, they conquered Palestine. फिलिस्तीन जिसको कहते हैं, उसको उन्होंने अपने अंडर में कर लिया. एंड वहाँ पे वो रहते नहीं थे, they did not stay there. लेकिन उन्होंने क्योंकि उसको अपने अंडर में कर लिया था, तो वहाँ पे उन्होंने अपने नाम से एक जूइश, यहाँ पे कौन से, यहाँ पे जो धर्म था, जो रिलीजन था, which was followed in Palestine, it was the homeland of the Jews. ये Jewish लोगों का homeland था. तो वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया and वहाँ पे they did not rule themselves. उन्होंने अपनी जगह एक वहाँ के एक Jewish बहुत बड़ा लीडर था, उसको उन्होंने वहाँ का राजा बना दिया. They made him the empire there. और उसके बाद they went off further. और वो जो है वो रोमन एम्पायर के लिए काम करता था, हेरोड जो. He is known in history as Herod the Great के नाम से ये जाना जाता है. बहुत ही एक थोड़ा सा मेंटल इनस्टेबल टाइप का पर्सन था. ये बहुत ही बुरा, मतलब इसकी हिस्ट्री ये है कि ये इतना किसी की बात में आ जाता था कि कुछ भी करने को तैयार हो जाता था और किसी पे भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेता था. He can be मतलब मूव anywhere against anybody. तो इसीलिए ये, और दूसरा ये क्या करता था कि टॉर्चर्ड एंड किल्ड द Jews themselves. ये अपने ही लोगों को टॉर्चर करता था, मारता था और उन लोगों को बहुत सारी चीजों के लिए जबरदस्ती करता था. He told कि you have to worship the Roman gods. तुम्हें रोमन गॉड्स को वर्शिप करना जरूरी है. He himself was Jewish, but he was telling his people कि आप जाओ और रोमन गॉड को, because he was much loyal to the Roman Empire. That is why he told all these things. Now what happened? He was killed. वो इसी मेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से मारा था और उसके मरने के बाद उसके 3 बेटों में डिवाइडेड हो गया उसका जो एम्पायर था. उसी में 3 एरिया में एक जूडे जो था, वो एरिया जो था वो उसके एक बेटे को दिया गया था. उसके बेटे ने क्या किया? What his son did, he wanted to get himself free from the Roman Empire. उसके बेटे को वो रोमन एम्पायर थे उससे वापस आना चाहता. बट द रोमन्स डिड नॉट वांट दिस. वो तो ये थोड़ी चाहते थे, दे वांटेड हिम टू रूल, बट अकॉर्डिंग टू द रोमन्स. वो चाहते थे कि वो वहाँ पे रूल करे, बट रोमन्स के अकॉर्डिंग रूल करे, नॉट हिमसेल्फ. तो इन्होंने क्या किया कि क्योंकि वो रूल कर रहा था, तो व्हाट द रोमन्स डिड, ही किल्ड देम. और अगस्टस नाम था रोमन एम्पायर का, उसने उनको वहाँ से
और फिर अपना एक कठपुतली जिसको कह सकते हो वहां पे बैठा दिया, जो पूरा उस टाइम पे रूल करना शुरू कर दिया उसने। इन द मीनवाइल जब ये सब हो रहा था, व्हेन हेरोड वाज देयर, ये सब हो रहा था वहीं जरूर यहाँ बेथलेहम में जीसस क्राइस्ट का जन्म। Who was, how and when and where Jesus Christ was born. All these things which were happening in Palestine, the people of the Palestine, they were fed up with the tyrant rulers. इनसे एकदम वो fed up हो चुके थे and they wanted a change in the political scheme. वो एकदम change चाहते थे अपने politics में। तो उन्होंने क्या किया, वो बस यही दुआ करते थे कि कोई let somebody come और हम लोगों को इन सब चीज़ों से आज़ाद कराए, एक मसीहा, because in their religion also it was told that a Messiah will come. So Jesus was born. Jesus का जन्म हुआ. He was born in Bethlehem. उसके मदर और फादर का नाम मैरी एंड जोसेफ था. It is told that एक एंजल आए थे मैरी के उसमें, उनके ख्वाब में एक एंजल आए, एन एंजल, it is said that God sent the angel to मेरी के पास भेजा और मैरी से कहा कि you will have a son, और वो सन जो है उसका नाम जीसस रखिएगा, because he will be the son of the God. वो गॉड का सन है, it is a मतलब blessing to you, ये गॉड की blessing है आपके लिए, so just name that boy Jesus. And his father was, जोसेफ जो थे उनके फादर थे, his father was a carpenter. In his early times अपने धीरे धीरे जीसस बड़े हुए और वो भी like his father he also started carpentry. But after some time when he saw the condition of the people which was very miserable और इतना ज़्यादा जो लोग मारे जा रहे थे और ये सब देख के he was very fed up और उन्होंने क्या किया कि he left the carpentry. उन्होंने अपना ये जॉब छोड़ दिया and he started roaming and telling the people to love the people, to sacrifice, have truth, have faith in truth and live a simple life. उनका कहना ये था कि simple life जियो, लोगों की मदद करो, अपने एनिमीज तक को आप माफ कर दो और इस तरह से, क्योंकि उनकी इतनी इजी टीचिंग्स थी, वो पैराबल्स और सरमन्स जानते हैं, जैसे पैराबल्स यहाँ पे भी आपने देखा है, कबीर वगैरह हुए हैं, तो उन्होंने भी इन द सेम वे जीसस ऑल्सो ही स्टार्टेड रोमिंग, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लोगों को अपने मैसेजेस पहुंचाते थे. उनके मैसेजेस में क्या क्या था? लव, सिंप्लिसिटी, ब्रदरहुड, मर्सी. मर्सी का मतलब होता है दूसरों पे रहम करना, प्योर एंड सिंपल लाइफ बिताना, और साथ ही साथ उनका ये भी था कि वो आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करो. यू डू व्हाट विद अदर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर्स. दूसरों के साथ वो करो जो दूसरों से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ करें. So these are the messages of Jesus and it was very simple for the people. इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा रिचुअल्स नहीं थे, कुछ नहीं था. The people they started following Jesus. ये सब जो है, all this is mentioned. आखिर ये सब क्योंकि उस टाइम कुछ लिखा तो जाता नहीं था कि कहाँ से पता चलता है. From where do we get all this information? We get this information from Gospels. So all this is mentioned in Gospels. What is the meaning of Gospels? Gospels का मतलब है good news. It is a book. ये बुक लिखी हुई है. इन बुक्स में 4 फेमस हैं जिनकी हैं मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जॉन की बुक्स का वो किया जाता है, रेफरेंस लिया जाता है. So these were the Jesus messages. उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हुए. He used to roam from one place to another, heal the people, heal the sick. यहाँ तक कि मतलब कहते हैं कि उनके अंदर इतनी ताकत थी कि उन्होंने मतलब जो ब्लाइंड थे उनकी भी आंखों को वो छूते थे और उनको बैठा के मतलब उनकी आंखों को छूते थे और मन में कुछ वो करते थे और उसके बाद जब हाथ हटाते थे तो वो आदमी देखने लगता था. मतलब इतनी ज़्यादा उनके अंदर शक्ति थी. बट ही लेड अ वेरी सिंपल लाइफ और यही चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगी. एंड द पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. लोग उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बनने लगे और उन्होंने अपने इन सब मैसेजेस को फैलाने के लिए 12 डिसिपल्स को अपने अंडर में लिया था. उन 12 डिसिपल्स ने इनके मैसेजेस को कई सारी कंट्रीज में फैलाने का काम भी किया, जो आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि ये क्रिश्चियनिटी फैली हुई है. इसी तरह फैली थी. द नेक्स्ट थिंग, उनका एक बहुत ही फेमस वो है, sermon है. Sermon means it is a religious talk type
which is delivered. उन्होंने एक sermon किया था on Mount means mountain पे. उन्होंने एक sermon mountain पे एक sermon किया था और वो mountain था कहाँ पे? इज़राइल में. And वहाँ पे Hebrew scripture है, जैसे आपकी देवनागरी वगैरह होती है, वहीं Hebrew scripture में वो लिखा हुआ है. And it is said that वो sermon में उन्होंने कई सारी बातें कही थी, उनमें से ये भी थी, उनके कई सारे टीचिंग्स थे और ये बहुत ही फेमस सर्मन था. कई हजार की तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे थे उनके सर्मन को सुनने के लिए. Many of the people went, and there one of the stories there also, one man who had got leprosy. You all know what is leprosy? Leprosy का मतलब था कोढ़, उसको कोढ़ की बीमारी थी. वो आदमी भी, he also wanted to listen to him, so he was also following him, but he was just walking away from all others. All of them started shouting, Jesus, don't call him, don't go to him. But what Jesus did, Jesus ने क्या किया? उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी. वो उनके पास गए, उस आदमी ने उनसे कहा कि जीसस प्लीज मुझे मेरी इस मतलब जो मैं इतना तड़प रहा हूँ इससे मुझे मुक्ति दे दो. और क्या हुआ? एंड व्हाट हैपेंड? जीसस जस्ट टच्ड हिम, हिज बॉडी, एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उनके सारे जितने भी कोढ़ के वो थे सब खत्म हो गए. एवरीथिंग इज गॉन. तो पीपल अब इस तरह से व्हेन एवरीथिंग हैपेंड तो लोग जो थे उनके और भी ज़्यादा फॉलोअर्स, दे स्टार्टेड फॉलोइंग मच मोर. उनके फॉलोअर्स बढ़ते ही चले गए, उनके डिसिपल्स बढ़ते ही चले गए. इन हिज लास्ट टाइम ही केम टू जेरूसलम. वहाँ जब आए इज़राइल तो वहाँ पे ही स्टार्टेड डिलीवरिंग एवरीथिंग, एंड वहाँ पे भी उनके फॉलोअर्स एंड डिसिपल्स दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग. And now what happened? The Jewish priests, उनको अब डेंजर लगा. They thought कि अगर इसी तरह से इनके बढ़ते चले जाएंगे जितने फॉलोअर्स एंड डिसिपल्स हैं और वो लोग क्रिश्चियंस इस तरह से क्रिश्चियंस होते चले जाएंगे तो हम लोगों के धर्म में तो इनके अपना धर्म संकट में लगा. So what did they do? They were alarmed and they were infuriated also. So what did they do? At that time there was the Roman governor in Jerusalem. His name was Julius. His name was Pontius Pilate. So what did he do? All of them went, all the Jewish priests, they went to him, the Roman governor, and told him कि ऐसा है कि जो Jesus है, what is he doing? He is just saying that I am the king of the Roman Empire, मैं Roman Empire का राजा हूँ. सब all false things about Jesus they started saying. सारी गलत चीज़ें उनके दिमाग में भर दी कि जीसस जो है वो लोगों को भड़का रहे हैं, अगेंस्ट दे आर मेकिंग द पीपल अगेंस्ट यू एंड ऑल, इस तरह से करके. तो पॉन्टियस ही सेंट द पीपल टू गो एंड कॉल जीसस. वो जीसस को पकड़ लिया है और उनके ऊपर केस चला और इसी केस में ही वाज सेंटेंस टू क्रूसीफाई. इनको क्रूसीफाई करने का आदेश हुआ. इनको एक पॉलिटिकल रेबेलियन माना गया. व्हाट डिड ही वाज? ही वाज नोन एज अ पॉलिटिकल रेबेलियन किया गया. कोई रिलीजियस है कुछ नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल. He is a political rebel and he has to be crucified. So he was crucified in Golgotha. It is in Jerusalem where he was crucified. वहाँ पे what is crucifying? Crucifixion क्या होता है? What is crucifixion? Crucifixion, you know, the hands are hammered on a cross. और आप सबने देखा होगा चर्च वगैरह में किस तरह से उनके क्रॉस पे और उनके हाथ में कील लगी हुई है. ये सब तो he was crucified there. लेकिन एक स्टोरी है that Jesus Christ came into resurrection. What is resurrection? कि उनका कहते हैं कि जैसे फ्राइडे को उनको जो क्रूसिफिक्शन हुआ था गोलगोथा में, इट वाज इन कहीं पे इट इज रिटन इन 29 CE, कहीं पे है कि उनका 30 CE में हुआ था. तो वहाँ पे जब हुआ उसके इट वाज अ फ्राइडे का दिन था. दैट इज व्हाई द क्रिश्चियन सेलिब्रेट इट एज गुड फ्राइडे. और फिर 3 दिन बाद कहते हैं कि जब उनके टॉम के पास एक गई थी वो लेडी, उसका नाम था मैरी. व्हेन शी वेंट देयर तो उसने देखा कि टॉम में वो है ही नहीं. ही टोल्ड कि वो अलाइव, वो तो जिंदा है. तो इसीलिए अब वो संडे का दिन है, इसीलिए ये जो है दे सेलिब्रेटेड एज ईस्टर. आपने सुना होगा गुड फ्राइडे के बाद जो संडे आता है दे सेलिब्रेटेड एज ईस्टर. उस दिन उनका कहते हैं कि गॉड ने उनको फिर से दोबारा जन्म दिया था. और उनको वही नहीं, कई लोगों ने कहते हैं 500 लोगों ने 500 people saw him alive. And after the resurrection also he lived 40 days. कहते हैं कि उसके बाद भी वो 40 days तक जिंदा थे. One story is there. आपने बहुत ही फेमस पेंटिंग देखी होगी, The Last Supper. It is by Leonardo da Vinci. ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है. उसकी एक स्टोरी है उस लास्ट सपर की.
सपर का मतलब होता है खाना, जब एक साथ सब लोग बैठ के डिनर, उस टाइम ये चलता ही था, देन ऑल द पीपल के। तो वो जो लास्ट सपर है, वो ये जो पेंटिंग है उसमें दिखाया गया है कि ऑल द जीसस क्राइस्ट इज देयर एंड 12 डिसिपल्स आर देयर, उनके साथ है, और वहाँ पे वो लोग पूरा फूड वगैरह बिखरा पड़ा है, वाइन है, वाइन के ग्लासेस है, एवरीथिंग इज देयर। तो ये क्या स्टोरी थी? ये स्टोरी ये थी कि ये जो जीसस क्राइस्ट थे वो नेक्स्ट डे इनका क्रूसीफाई होना था। समबडी सेज कि ये लास्ट सपर जो था वेडनेसडे को इन्होंने किया है, कुछ लोगों का कहना है कि इट वाज इन थर्सडे, इन सम ऑफ द बुक्स इट वाज इन वेडनेसडे एंड इन सम ऑफ द बुक इट इज इन थर्सडे। बट जो भी था, तो उस दिन इन लोगों ने लास्ट सपर में वहाँ पे सब इकट्ठा किया अपने डिसिपल्स को, क्योंकि ही वाज नोइंग दैट ही इज गोइंग टू डाई, द नेक्स्ट डे ही इज गोइंग टू क्रूसीफाई। एंड वहाँ पे दे हैड देयर डिनर। तो उस डिनर में इन्होंने अपनी ब्रेड जो थी, वो पहले ये रिवाज था, इट वाज अ कस्टम देन व्हाट द लीडर यूज्ड टू गिव पीसेस ऑफ ब्रेड टू ऑल द पर्सन्स हु वर देयर फ्रॉम हिज ब्रेड। तो ऐसे ही उन्होंने भी अपने में से तोड़ा, एंड एक बात उन्होंने कही कि सी आई एम गोइंग टू गिव दिस ब्रेड टू दैट पर्सन हु हैज बिट्रेड मी। बिट्रेड मीन्स गद्दारी की थी उनके साथ भी किसी ने। इन्हीं 12 डिसिपल्स में उनके एक गद्दार था, उनका नाम जूडा था, और उन्होंने इस रोमन एम्पायर को सिर्फ 30 सिल्वर कॉइन्स के बदले उन्होंने इनके बारे में बता दिया था, और उनसे ये कहा था कि हम अब नोबडी नोज कि जीसस कौन है, कैसे पहचानेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जूडा ने कहा कि आपने सेंड ऑल योर आर्मी एंड आई बी देयर एंड आई जस्ट किस दैट पर्सन हु इज जीसस, मैं जाके उनको किस करूँगा। तो जैसे ही उसने किया तो वो कर लिया। तो ही वॉज नोइंग इट, जीसस क्राइस्ट को ये पता था, और उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, सिर्फ इतना कहा कि ये आई एम गोइंग टू गिव द फर्स्ट पीस ऑफ द लोफ ऑफ माई ब्रेड टू दैट पर्सन हु हैज बिट्रेड मी। और उन्होंने वो सबसे पहला दिया था उस डिसिपल को, उनका नाम था जूडा। तो इसका मतलब कि उन्होंने ही उनको बिट्रे किया। आफ्टर हिज डेथ people thought that Christianity has come to end, but not. After his resurrection, people gained confidence again, और उनके बहुत सारे जो डिसिपल्स थे, उनमें से जो मेन थे, जैसे सेंट पीटर है, सेंट जॉन, सेंट पॉल, so they all started spreading all over and converting people, started converting people to follow Christianity. In the same way, the Britishers, they came in India also, and they started following, मतलब they also converted, कई villages को they converted into Christianity, कई सारे विलेजेस को उन्होंने क्रिश्चियनिटी में चेंज कर दिया, और इसी तरह से मुस्लिम फॉलोअर्स जो हैं पूरे ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में उनके फैलते चले गए। एंड अभी भी जो है रोम में जो चर्च है, सेंट पीटर्स चर्च है, वहाँ के जो बिशप होते हैं, ही इज नोन एज द पोप, ही इज फादर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी चर्चेस, ही इज नोन एज द मेन पोप, इज द मेन ऑफ ऑल द क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। I hope that you all have understood this chapter. If you have any problem, you can call me or text me. In next session, I am going to tell you about the spread of Christianity. Thank you.